Well, good morning. So once again, I have to tell you heartily welcome to the Konika BBM BCA College, Vijayapur. Well, we are in the newest subject for you. So university totally they have changed the title of this subject. Earlier, the name of this subject is managerial economics, but today, as per the university, they are given title of this subject is that elements of cost and market analysis. The title is, but inside everything it will be same as it is earlier. Whatever the previous same syllabus is there, same syllabus, only the title it will be changed. So that is why. So that is the elements of cost and market analysis is one chapter is there. That chapter it will be highlighted nowadays. So means that they are remove the managerial economics. One chapter they have to be highlighted elements of cost and market analysis. So before we want to be started, so today is the first day I am starting this managerial economics subject or elements of cost and market analysis subject we are starting now because your examination date has come, so we have completed your syllabus 25th January, that is the last date of the we have to be completed within that. So means today, so December is there, so January still time is there, so 1.5 month I will wait, before that I will complete this subject. Already we are completed principles of marketing we are completed. So my subject is second subject is the elements of cost and market analysis. That is actually it will be nothing but we have to study about the managerial economics. So your background is I think it will be arts, science. So that is why first you have to understand what is the main title of this subject is. That is subject. So as for today, elements of cost. So what is the importance of cost? So we have to study about the cost. Cost means what? Whatever you are spending money for making of product, it is called as a cost. जो भी प्रोडक्ट रेडी करना है कर रहे हैं तुम्हें, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, कितना पैसा खर्चता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं. So suppose you are a businessman, whatever is you are spending for the making of this pen, so same rate you are selling in the market. जितना खर्चते हैं उतने रेट पे बेचते क्या तुम मार्केट में? नहीं. So means that you are not a businessman. So you have to be sell on the more. So whatever you spend it, that is the cost, and you have to add your profit, your salary, rent, everything you have to add. And then you are selling. Suppose the 10 rupees cost is there or 5 rupees cost of this pen, you have to be sell on the 8 rupees. So means that 1 rupees your electricity, it will be all comes, 1 rupee transportation margin, everything, 1 rupees your profit. So 3 rupees you have to add and you have to sell on the 8 rupees. This is the MRP rate. So like that, the cost, how much cost you have to be. So what type of cost, how you have to be control the cost in that. So that is the most important thing. Suppose you have a 1000 rupees. Your father has given. अगर तुम्हें आप हॉस्टल में है, कॉलेज को जा रहे हैं, तुम्हारा अब्बा बोले 1000 रुपये मैं दे रहा हूँ. So that 1000 rupees you have to spend completely 1 month. तो how you have to spend? So यहाँ पर क्या आता है, तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ता है. So you have 1000 rupees. How you have to spend? It is called as a वो हल्लो हल्लो कैसा डेली का तुम्हें क्या करना कि पूछ के कितना है चाय पीने का, कितनी नहीं पीने का. जहाँ पर 4 पूरी देगा 2 पूरी लेना पड़ेगा. ऐसा करते करते पूरा महीना तुम्हें करना पड़ेगा. जो तुम्हें सोच सोच को खाते हैं, सोच सोच को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. कितना कंफ्यूज है कहते हैं. That is actually the word is economic. Economics क्या कहता है? Economics it will be say you how a earn money. पैसा कैसा कमाना? How you have to earn money? How you have to kept money? How you have to spend money? कैसा कमाना, कैसा रखना, कैसा खर्चना, ये क्या बताता है? It is called as a economics. That is why economics is really very important in your life as well as in business. अगर economics
तुम्हारे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो तुम्हें क्या करते हैं, पैसा जमा रहे हैं। अब तुम्हारे अब्बा की 10,000 सैलरी 8 साल की खा के छोड़ देंगे पूरे दिन, एक ही दिन में खा सकते हैं। है तो क्या होता है, यू विल बी सफर 29 डेज। तो इसलिए क्या है, इकोनॉमिक्स तुम्हारा अब्बा को पैसे एक साथ तो क्या करते हैं, एक घर में आके बैठ के दिमाग लगाते हैं, अब्बा क्या करने की करना है। एक्चुअली उन्होंने फैमिली को कैसा खुश रखना यत्ते पैसा के अंदर, तो पैसा कैसा करना है, थोड़े पैसे घर में रखते हैं, दवाई खाने की खाए तो इतने होना पैसे, कोई भी गेस्ट आए तो थोड़े इतने पैसे होना, थोड़े बैंक में ये बच्चे की एजुकेशन है वो है, सर की फीस भरना वो भरना, ये सब कैलकुलेशन कर दो, लास्ट में जितना पैसा आता है वो सेविंग कर, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो तुम्हारा दिमाग लड़ा को जितना हो उतना कम करते जाने का, वत्ते में जीने का, चद्दर कितनी कितनी वत्ते में जीतने का बोलते हैं, उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। अगर ये इकोनॉमिक्स तुम्हारे बिजनेस में अलाइव हो तो तुम्हें प्रॉफिट में होते कि नहीं? When you have to take this word economics in your business, and definitely you will call as a businessman. अब तो ना 10,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस के अंदर, पूरे 10,000 रुपए खर्च छोड़ देंगे तुम्हें? नहीं खर्च दे। कल के दिन में बिजनेस ऐसा हटा के नहीं कि आगे बढ़ाना पड़ता नहीं, बिजनेस थोड़े थोड़े पैसे काट को रखते हैं, थोड़े है सो जो खर्चते हैं, बाकी के सामान लेने रखते हैं, ऐसा 100 रुपए में तुम्हें उतना सेविंग करने के बाद में कल के दिन क्या होता है, बिजनेस कैसा कैसा तुम्हारा बढ़ता वैसा पैसा डालना पड़ता है आगे। सो अभी देखो तुम बाजार में एक शोरूम रहता है, शोरूम वाला क्या करता है, वत्ते कुछ बैठता नहीं है, पैसे जमा जमा को घूम के बाहर जगह लेता है, क्यों बोले तो आगे बिजनेस बढ़ने के चांसेस होते हैं, या दुकान पूरा कंजेस्टेड होता है तो मैं बाहर जाना होगा, अभी शोरूम जितने हो गए तो ये सब पहले खरीद समझो। ये इकोनॉमिक्स बताता तुम ना, हाउ यू आर टू बी सर्व। सो इन दैट whatever amount you have, how you have to be grow your business. So that is the main thing in economics. That is why economics is playing a very important role in business. इसलिए बिजनेस में जब वो आपको इंटर कर वो अपना इंपॉर्टेंट दिखाता तो उसे हमें एक नाम रखें, क्या, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और ए बिजनेस इकोनॉमिक्स we have to be both are the same. So मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं हमें, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। Why? Because economics we are utilizing in our business. It is called as business economics. Managerial means that a economics will manage our business. That is why we are calling as a managerial economics. So economics समझे तुम्हें? How you have to earn money, how you have to get, how you have to spend. That it will show. That is why economics condition, economic growth of our country. समझे क्या नहीं? At present, economic growth is a down because of the so many reasons. इसलिए हर कंट्री अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैंडर्ड रखना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या करना, मेक द परफेक्ट प्लानिंग, पैसा एक साथ कैसा कैसा यूटिलाइज करना, कैसा करना क्या है, जब भी देश आगे चलता है, पूरे एक साथ खाए तो क्या होता है, देश तुम्हारा आगे नहीं बढ़ता। इसलिए इकोनॉमिकल फाइनेंस मिनिस्टर जो रहता ना, इकोनॉमिकल he is the main person who is doing all planning, making of that, how you have to utilize money, how you have to cap, and how you have to save your money. That could be economics. That is why economics also giving a very important role in the business. इसलिए हम बताता है बिजनेस में कैसा, अभी समझो सब जने अब दुकान में जाओ, तुम्हें कौन सी भी टेक्सटाइल तुम्हारे पैंट वगैरह लेने के लिए, तो वहां पर वो जो काउंटर पर बैठे रहता बिजनेसमैन, तुम ना ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं कितने के पैसे ये ले रहे, शादी के कपड़े ले रहे, तो देखा सब कुछ जरा ठंडा लेके, व्हाई, ही इज नॉट अंडर द लॉस, समझेगा नहीं, तो उसको फायदा हो रहा बोल के तुम ना ठंडा पिला रहा हो, खाली कपड़े आपको कुछ हो जाते हैं, घर सब जाते, चाय पी जाओ, कभी बोलता क्या तुम ना, ये पैंट कैसा सर है, बहुत महंगी है सर, तुम नहीं कर बोले नहीं, ठहरो चाय पियो, बोलता क्या नहीं बोलते हो, बिकॉज बिजनेस क्या है, ओनली मेकिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए तुम 10 कपड़े ले रहा हो, उसके अंदर तुम्हारी चाय का पैसा निकाल लेता हूं मैं, उसको बिजनेस माइंडेड होता है। इसलिए क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तुम्हें सिखाता है कि तुम बिजनेसमैन हो तो पैसा कैसा जमाना, एक्चुअली बिजनेसमैन बनो, लॉस में रहता, तुम्हें देखते होंगे ये जोमैटो है, इनो है, वो है, ये बेचते रहते हैं, तुम्हें सोचते क्या ये लॉस में बेच रहा है, कैसा फायदा है, कोई भी दीवाना नहीं है बेचने के लिए, समझे नहीं, everybody they are earning the profit because they are following the economics. Economics बताते रहता हूं हमको, यानी how you
मोटिफाइंग द पीपल, लोगों को दीवाना करके मोटिवेट करके पैसा कैसा कैसा निकाल लेना, प्रॉफिट में चलता है ना। इफ यू बाय वन शर्ट दे आर गिविंग वन शर्ट फ्री, समझे कि नहीं? तुम्हें क्या समझते ये है 50 में 2 आ रहे हैं, लेकिन उसको फायदा होता है, वहां कैलकुलेशन रहता है एवरीथिंग। तो ऑन दैट इकोनॉमिक्स बताता है सब पूरा कैसा करना क्या है। सो इसीलिए इकोनॉमिक्स इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस। दैट इज व्हाई nowadays the name has changed element of cost, यानी कितना कॉस्ट है तुम्हारे प्रोडक्ट को, कितना खर्चना, कैसा खर्चना। अभी तुम हूं बोल के पैसा उड़ा दो, तुम्हें खर्चे ये पेन का रेट इसको 15 रुपए पड़ा था तो बेच रहा है। अभी तुम्हें 10 रुपए मिलती है पेन, इसी 15 रुपए बनाने गया तो 10 रुपए बेच देंगे तुम्हें, यू आर अंडर लॉस। 5 रुपए लॉस हो जाता तुम्हारा, 5 के कुछ 18 रुपए 8 रुपए लॉस हुआ, तुम प्रॉफिट भी गया तुम्हारा। ऐसा कोई दीवाना नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको कम से कम पैसा लगना, पैसा तुम्हें स्टडी करके बनाते हैं। ये जितना कम में बनेगा उतना तुम्हारा फायदा है। यू टेक एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल्स एंड ऑल, वेयर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका एंड इंडिया एंड ऑल दिस थिंग, व्हाई दे हैव टू गो टू चाइना? लेबर कॉस्ट सस्ता है। तुम्हारा मोबाइल आधे रेट में बनता हुआ, फायदा ज्यादा होता कंपनी को। वहां मैन्युफैक्चर करते हैं, मार्केटिंग दूसरे कंट्री में करते हैं। देखो तुम्हें वहां मैन्युफैक्चर इन चाइना, मार्केटेड इन अमेरिका, नहीं इंडिया में आता है। चाइना में ही चलता हो कि कॉस्ट सस्ता रहता है, माल सस्ता रहता है, मटेरियल सस्ता रहता है और लेबर्स का पगार कम है वहां, इसलिए तो क्या होता है तुम्हारा फायदा ज्यादा मिलता है। इसलिए बिजनेसमैन करता है, दीवाना नहीं है चाइना को जाकर लेकर उन्हें बेचने को सब, बिकॉज दे वांट टू मेक ए प्रॉफिट। ये इकोनॉमिक्स तुम्हें बताता है। तो कॉस्ट कम करने का, कॉस्ट कम करे तो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होता है। खर्चा कम करने का, आप तुम्हारे घर में एक घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो तुम्हें सामने की ढूंढते हैं, क्या जरूरत है तुम्हारे सामने ठहरने की? तुम्हारा घर अच्छा भी बनना, सस्ते में भी बनना, समझे क्या? एक यहाँ पे जहाँ खर्चा ज्यादा होता है तो कम कराता है तुम्हें, वो नको सर, वो इसकी वुड न करो, इसे लगाओ, ये कितना पड़ता है? हाँ ठीक है। यहाँ पर तुम्हें खर्चा बचाते जाते हैं, घर भी अच्छा बनते जाता है, खर्चा भी बचाते हैं। देखो तुम्हें करना है इधर देखो, उससे क्या होता है तुम्हारे पैसे भी बचते हैं। इसे तो कॉस्ट, यू हैव टू कट द कॉस्ट। कॉस्ट को कम करते रहने का प्रॉफिट जास्ती होता है, पैसा बचता है। इसलिए इंजीनियरिंग भी आता है, इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग बोल के आता है। यानी जो भी इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, सो पैसा कैसा बचाना। तो ना हमें बोले थे 25 लाख में तुम्हारा घर बना के देते हैं, तो उन्हें पूरे 25 लाख घर बहाता क्यों नहीं बहाता? उन्हें तुम्हारा 20 लाख में बना के देता घर, 5 लाख रुपए किसी में बहाता, वैसा उन्हें इकोनॉमिक्स गेम खेलता। उन्हें देखता है, कैलकुलेशन करको बैठ को घर पे कि क्या क्या करना, क्या क्या नहीं, कैसा करना, क्या नहीं। मजे नहीं 20 लाख में बना, 20 लाख किसी चाबी देने का है, 20 लाख के अंदर कैसा कैसा प्लानिंग करना, कॉस्ट कटिंग होता है। सो दिस इज नथिंग बट आई से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ऐसे कौन से टूल्स हैं जो कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो देखने का आगे है। एंड देन उसको मार्केट को कैसा स्टडी करना, मार्केट एनालिसिस, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, we had to be collected on information and whichever the best for you, you had to analyze that. उसे लेको हमारे बिजनेस में यूटिलाइज करना, उसको मार्केट एनालिसिस बोलते हैं। उसे सोच छोड़ दो तुम्हारा ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट दैट। एक्चुअली व्हाट इज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन द बिजनेस? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इट विल बी solve all problems whatever it will comes in the management through the economical theory. It is called as a managerial economics. समझे क्या? अब तुम्हारे बिजनेस के अंदर क्या भी प्रॉब्लम्स है, whatever problems you are facing, so that problem it will be solved through the some theories. It is called as a managerial economics. Managerial economics कई बार साहब बिजनेस में बोलो तो मैनेजमेंट में हर आदमी को हर बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमें क्या करता है इकोनॉमिक्स हमारे इसमें लेकर को हमें डिफरेंट थ्योरी आता है। थ्योरी बोले तो सब जन लिखे सो होते हैं कि ऐसा कर ऐसा करना, ऐसा कर ऐसा करना, ऐसा कर ऐसा करना बोलते हैं, तो 4 दिन बैठ को वैसे पूरे थ्योरी सब वो लेकर हमें बिजनेस में यूटिलाइज कर ले तो क्या करते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व करने वाला कौन होता तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इट इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज कॉल्ड एज ए मैनेजरियल। Economics is a very beautiful subject. If you have to utilize in your life, आप हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल डाले तो तुम्हें सोचते नहीं मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल है, इतने में पूरे काम कर लेगा ना कर को
कर लेते हैं कि नहीं तुम्हें? नहीं तो क्या होता है, पूरी जगह तुम्हें गाड़ी लेके खड़े तो तुम्हारा लॉस है। इसलिए क्या है, पिग्मी वाले को देखो, पिग्मी वाले क्या करते हैं, इकोनॉमिकल थ्योरी अप्लाई करते हैं। सो जो एरिया में जाते हैं वो एरिया में गाड़ी रख को पूरे दुकानों को चल लेते जाको पिग्मी कलेक्शन तक, वो गाड़ी लेके भी दूसरे एरिया में जाकर रख को भी कर लेते हैं। ऐसा करते 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 तो क्या होता है, उनका पेट्रोल भी बचत होता है और उनका इनकम भी ज्यादा होता है। इसलिए कॉस्ट कटिंग करने का सीखना कभी भी लाइफ में। इकोनॉमिक्स तुम्हें बोलते हैं तो चिक्कू है, ये है, उन्हें चिक्कू नहीं रहता। ही इज नॉट ए कंजूस एंड ऑल, ही इज एन इकोनॉमिकल पर्सन। अपनी हैसियत देखो, करता रहता हूं खर्चा, और एक 100 रुपए अब्बा रख लेता हूं, 1000 रुपए देते बेटे बच्चे कितने, अब्बा 100 रुपए, अरे मेरा बेटा एक महीने तक चला तो 900 रुपए में करे, और आगे चलो तो करेक्ट रही ये रहा। सो दैट इज नथिंग बट एज इकोनॉमिक्स। ये नहीं तो आड़े तेड़े खर्चे हमारे लोगों ने खर्च नहीं, आड़े तेड़े कहां सब। सो अदरवाइज दे आर टेकिंग लोन्स, कर्जे में रहते हैं, इसमें रहते हैं, बैंक इसमें हो लॉस होते हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, उनको सेट होने नहीं आता और मार्केट से आउट हो जाता है। So that is why you have to take a managerial economics. There is nothing but as a application of economic theory to solve all the problems of a business. It is called as a managerial economics or business economics. What is the nature of economics? Nature क्या है? क्या करता है managerial economics business के अंदर? What role it will play? What is the nature? क्या है main role इसका picture के अंदर? Main picture क्या है तो microeconomics. They are introduced micro बोले तो क्या and macro. Micro and macro you know what that? Micro and macro. So हमारा इसमें आपका साइंस में micro and macro. So micro is nothing but a small internally. Macro is a big external. So here economics what they are doing nature micro. छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बिजनेस के अंदर. It is called as a microeconomics nature. क्या करता है economics? A managerial economics it will be studying the micro level economics in management and solve almost all problems. class दो लाइन लिखो. It is called as a microeconomics under the managerial economics. It is the first nature. Second nature related to normative, positive. Normative is nothing but as a what actually taught. क्या बोलना है वो स्वतः दूसरा इधर उधर लपड़ा नहीं. What is your problem that they have to know and it will be solved. Normative, positives. That is the second nature they are doing. Then it is nothing but a utilization of some theories. They are using theories. Theories you already know about that. There are those well-known people. They are written in something about that particular area or particular product or particular on the main subject. उसको हमें theories बोलते हैं. वो theory हमें apply करते हैं. समझे नहीं? वो theory apply करें तो बस है. अब you take example हमारे country में economical down हो रहा है तो हमें कैसा करना है? किसकी theory apply करना? यहाँ कैसा करना? मनमोहन सिंह is a very brilliant in the finance minister. उसकी theory उन्हें भाड़ी से देता बाहर मालूम नहीं. तो नहीं सुनी आर्टिकल उसका. उसकी जो thoughts हैं consultancy को ढंग से. सो अपने अपने दूसरे कंट्री वाले यहाँ को लेकर जाते हैं उसके पास कि हमारे कंट्री को सर सुधारना है तो क्या होना, तुम्हारा कंट्री कितना है, तुम पॉपुलेशन कितना है, क्या है, पूरा फिगर आपको कैलकुलेशन करके उन्हें देता है कि तुम ऐसा ऐसा करते जाओ तो तुम्हारा कंट्री ऊपर आते रहता है. सो दिस इज नथिंग बट एज ए यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल थ्योरीज. दे आर रिटन डिफरेंट पीपल व्हिच इज द बेस्ट दैट वी आर टेक एंड वी आर टू यूटिलाइज इन आवर बिजनेस. वो भी managerial economics करता है बोलता हूं. Then deal with the applications. So there are theories, applications हैं अलग-अलग लिखे applications that we are using under the business management. Management को कैसा सुधारना, कहाँ लॉस हो रहा है, अब हमारा कॉलेज लॉस हो रहा है कहीं की वजह से हो रहा है because the management they are disturbing and all. तो हमें उसे सुधारना कैसा करना, क्या ऐसे कॉलेज का पूरा प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक कॉलेज के, कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं. So we have to make applications on that. That is the nature of first is microeconomics related and then utilization dealing with the applications and fragmented. Fragmented is nothing but as a practical. Practical कर को देखने का तुम्हें बोले रहते मुझे ठीक है सर्च कर दो मैं ऐसा कर को देखने का उसका रिजल्ट आता है क्या. Only for the name sake no.
यू आर टेलिंग मी ओके नो प्रॉब्लम सर, तुम जैसा बोलता वैसा कर दूंगा सर, क्या करना मैं वैसा कर दूं। हाँ दूसरा दिन कैसा रहा सर, फर्स्ट क्लास है, इंप्रूव हुआ, फिनिश। प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, तो ना थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली। दैट इज नथिंग बट एज ए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑलवेज यू विल गो फॉर प्रैक्टिकली। ये करो, इसका रिजल्ट नहीं आया तो बोलो, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रैक्टिकली फ्रैगमेंट। सो देन concept in nature, that is analyze business problems. Concept क्या है? What is the main concept of managerial economics? To solve all the problems. Concept देखता हूँ नहीं, पहला तुम्हारा क्या है concept, तुम्हारा बिजनेस क्या करना चाह रहे हैं, क्या है, तुम्हें क्या करते हैं, वो concept देखो तुम्हारा क्या करता है, उसके ऊपर solve करने का प्रॉब्लम theories देता, इसको ये फिट होता, ये होता। That is why analyzing business problems. First they have to know what your concept. And what is the concept of managerial economics? To solve the problems. इसलिए concept in nature, that is a 6 1. 7 is whatever the problems it will comes in the business, managerial economics it will be stand in front of you to solve almost all problems. That is why economics it will be बहुत important है हर बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपने आप में, अपने कंट्री में, सब तरफ economics is most important thing. If you have to be along with the economics, you will be never undercomes in the problems. इसलिए क्या कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं रहते तो economics को गले लगे। economics थ्योरी से ज्यादा करने का 1000 रुपए ऐसा खर्चना दिमाग में आया, economics चालू करना, economics बता दो तो ना क्या करना, क्या क्या करना, तो तुम ना सॉल्व होते हैं। लोग होना सोचते हैं कि कंजूस है, क्या है, एवरग्रीन होते हैं, तुम्हें हर महीना चमकते रहते हैं, समझे कि नहीं? थोड़ी चीजें हैं मुझे अवॉइड कर देना। अब तुम्हारा दोस्त है, उनका अब्बा सौकार है, उसे 5000 रुपए दिए उन्होंने डेली, तो उन्हें 1000 रुपए दिए तुम्हारा अब्बा के, उन्हें 5000 के हिसाब से खर्च करता है। मुझे 5000 मिलते हैं तो उन्हें डेली केटी पीने का, पूरी खाने का, भजी खाने का, ये खाने का, वो खाने करता है। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ चाय की पूरी का क्लास। तो तुम्हारे बजट के हिसाब से तुम्हें जाते हो, उसके बजट के हिसाब से तुम्हें जाते हो, उसमें और तुम्हें कटौती करके बैठे तो you will be economical persons. ये गलत बताता हूँ। So that is it, that study of allocation of resources. यानी resources कैसा, whatever material you are using in business, उसको कैसा यूज करना, कैसा नहीं, ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स बताता है। अभी तुम्हें एक लेबर को लगे करके उन्हें मटेरियल ले रहा है, डाल रहा है, सब खराब कर रहा है, सट रहा, बाकी का ये कर रहा है। यू टेक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लास्टरिंग चल रहा तुम्हारे घर का, ठीक है, ऐसा मारते चक 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 मारते रहते हैं। मारेंगे कि मटेरियल कितना पड़ता नीचे, वो मटेरियल को तुम ऊपर नहीं मार सकते, उसका स्ट्रेंथ चले गया रहता, समझे क्या नहीं? उसको बचाने के लिए अब्बा क्या करते हैं, ताका बिछाने के लिए उन्हें बिछाता है, रोटी बिछाता है, लेकिन उतना खास नहीं बिछाता, तुम्हारा डर रहता है, तुम्हें क्या करते हैं, बिछाते हैं। बिछा को क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि वो मटेरियल जो पड़ रहा है मैं यहाँ की दीवार बना लेना, नहीं तो वो खड्डा बंद करना, जो मटेरियल पड़ता है इसके अंदर वो भी काम होता है तुम्हारा। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज कैसा है, उसको कैसा यूटिलाइज करना। एक बिजनेस के अंदर तुम्हारी मशीन चलती रहती, तो रॉ मटेरियल कितना डालना, वेस्ट नहीं करना उसके अंदर, वो वेस्ट वो मटेरियल क्या करना, देखिए कि तुम्हें लवे के जो भी बनाते हैं वेस्ट मटेरियल से क्या करते हैं, सब बना को आखिरी को तुम्हारे भांडे घिसने का बना तुम्हारा वेस्ट मटेरियल में, इसीलिए वो इकोनॉमिकल इसलिए भी ज्यादा उसमें कमाते हैं। सो दैट इज नथिंग बट एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कैसा लेना, किसे लेना, काम को किसको रख लेना, उसको नॉलेज है कि नहीं देखना, ये सब तुम्हारे इंपॉर्टेंस है। यानी रिसोर्सेज एलोकेशन कैसा करना, कैसा कैसा लेना, कैसा कैसा हमें यूटिलाइज करना मटेरियल अपने बिजनेस के अंदर, इट इज कॉल्ड एज ए स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो सब इकोनॉमिक्स बताता है। सो दिस इज नथिंग बट एज ए न्यूएस्ट सब्जेक्ट टुडे वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट फॉर द फर्स्ट semester students. This is a very important subject for you. It is nothing but as the elements of cost and market analysis, and actually the name earlier is the managerial economics or business economics. Whatever today we are discussing about that introduction along with the nature of managerial economics, that is nothing but as a first model we are starting. So your
up to that your subject or your syllabus we have to complete it before the January 25th. So your examination it will be started, I think it will be 27th of January 2021. So until you have to make ready yourself, and I already sent you on the online that our second test will be started shortly. So today I am sending the questions. So whatever those who are given the blue books in my hand, and I already checked, and you have to collect it from the office and start writing of the second internal test as per the university. That is compulsory, and you have to be observe keenly and listen carefully. This is a very important subject and scoring subject. It is nothing but as a element of cost, and that is a market analysis. It is nothing but as a managerial economics. Here in this subject there are 4 problems it will comes that we have to solve, and it is very important for that. So here we are stopping, and tomorrow we will be continue about that. Until that you have to be take care and we have to be continue. Okay, thank you very much.